maybe the video. So please. Students are also joining. All the page is visible to all of you. And please wait for 2 seconds to have a good view of the screen. So what we do today, we just make sure that we proceed via topic, and the topic is hydrogen peroxide. Clear? So first of all, when we say peroxide or peracid, that means one extra oxygen. And when we say hydrogen peroxide, it is basically one oxygen excess as compared to water. This is H2O2, that is called hydrogen peroxide. Now, what about we discuss about hydrogen peroxide is ये कैसे बनता है, मतलब इसकी प्रेपरेशन एक ये पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 2 इसका स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 3 और एंट्रेंस के लिए आप पढ़ोगे, सिलेबस में भी है वो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, पूछते क्या है, तो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है भाई हमारे पास कि इसको कैसे हम निकालते हैं स्ट्रेंथ। होप दिस इज क्लियर, ठीक है, वही स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं H2O2 के, but there are not in there are 4 topics, but the 3 that is preparation, properties and numericals about strength are important. Structure is not too much of weightage, but you remember the structure also. So first of all, how we prepare hydrogen peroxide. Let me discuss how we prepare. Before that, there are 2 things that we discuss. One is hydrogen peroxide was discovered by a scientist and his name was Thénard, and discovered somewhere in 1818. He's from the France, okay, and it occurs in what we can say in traces in air, in rain also, and in plants also, okay. तो ये भी हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक तरह का डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, पर आपका ब्लीचिंग एजेंट भी यूज होता है, so it is also used a bleaching agent. So this is about the fact that it is discovered by the French scientist Thénard, and it is present in air, rain and plants, okay. So this is all about its and its molecular formula H2O2. So इसका molecular formula क्या होगा भाई, H2O2 होगा। अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, so what are method of preparation, how we prepare H2O2, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब H2O2 को अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है भाई। नंबर 1, सबसे पहला मेथड, ठीक है। तो भाई सबसे पहला मेथड हम क्या करते हैं, वी नो दैट हमें सबसे पहला मेथड करना होता है लैब मेथड। ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर किसी का लैब मेथड है तो कोई करेंगे। तो भाई सबसे पहले कौन सा, लैब मेथड। मतलब लैब में कैसे बनता है भैया, देखो लैब में कैसे बनता है कि अगर कोई भी एसिड, जैसे मेरे पास है H2SO4 लिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले एसिड क्यों होना चाहिए भी, तो रिमेंबर एसिड मस्ट बी प्रोटोजेनिक, और प्रोटिक, मतलब that is having H positive ion, proton. When that react with alkali metal peroxide, that is Na2O2, so surely what will form, there is displacement. So sodium displaces hydrogen and form Na2SO4, that is called sodium sulfate, and hydrogen displaces sodium, and what we get H2O2. This way we get hydrogen peroxide. So this is lab method. So basically we use
we use the peroxide of the sodium here. So this is called sodium peroxide, and the whole reaction occur in H2SO4. And remember, this H2SO4 must be dilute, और मतलब इसको हम लिखते हैं, और reaction is very at low temperature, that is ice cold condition. You can prepare H2O2. This is one method. So this is the one case. Number two, but remember, here we use H2SO4. We cannot use HNO3. So remember, HNO3 cannot be used. Why so? Why so? Because it will oxidize. It will oxidize. क्या क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है, जैसे आपका H2O2 निकलेगा, ऑक्सीडाइज करता है H2O2 को फर्दर वाटर और ऑक्सीजन में, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं किसको? H2SO4 को। तो ये भी हमारे पास H2O2 का बनाने का मेथड, लैब मेथड। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर टू इज बेसिकली फ्रॉम, दिस इज आल्सो द लैब मेथड, ये भी लैब मेथड है हमारे पास है, बट उसमें हम यूज करते हैं बेरियम सल्फेट को। तो अगर मैं बता दूं आपको कि हमारे पास नंबर सेकंड फ्रॉम barium sulfate. So how we get from the barium sulfate? What is barium sulfate? First of all, BaSO4, ठीक है, इससे भी मिलता है यहाँ पे। तो अब बेरियम सल्फेट हम यूज करेंगे, बट पहले इसको बनाएंगे, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट बेरियम सल्फेट, फ्रॉम बेरियम ऑक्साइड। बेरियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे। सो फ्रॉम बेरियम ऑक्साइड, and this is barium oxide, but we use barium peroxide with the formula BaO2. So when barium peroxide, this is basically hydrated one with 8-time water molecule, this react with sulfuric acid, H2SO4, again dilute one. What we get? We get barium sulfate as a side product along with H2O2 plus 8 times water molecule. So this is the next from that is barium oxide, and this barium peroxide, sorry. So barium peroxide से बनता हमारे पास सिमिलर है यहाँ पे लैब मेथड की तरह। तो कभी कभी लैब मेथड को पहला भी हमारे पास और लैब मेथड हमारे पास दूसरा भी है। इसमें मैंने ग्रुप 1 का एलिमेंट लिया और इसमें मैंने ग्रुप 2 का एलिमेंट लिया। कैल्शियम के बाद बेरियम आता है, ठीक है। तो आप दोनों को यूज करते हो, एल्कली मेटल को यूज कर सकते हैं, आप एल्कलाइन अर्थ मेटल को यूज कर सकते हो, दोनों को यूज करते हैं। ये हो गया भाई एक मेथड, ठीक है। अब मतलब एक हो गया लैब मेथड हो गया भाई हमारे पास है, तो दो मेथड बट एक ही लैब मेथड में यू कैन इंक्लूड फर्स्ट और सेकंड। नाउ सेकंड, अब जो थर्ड मेथड यहाँ पे आएगा, थर्ड वी कैन प्रिपेयर H2O2 by we can say reaction of, that is called, उसको बोलते हैं एंथ्राक्विनोन, ठीक है। तो भाई एंथ्राक्विनोन की हमें से बनाना है, और एंथ्राक्विनोन से क्या करना भाई, मैं एंथ्राक्विनोन को हमने ऑक्सीडाइज करना है। तो हम बोल सकते हैं सिंपल, नॉट ऑक्सीडाइज, सॉरी, बाय रिडक्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा भाई हमारे पास, देखो व्हाट इज एंथ्राक्विनोन। सबसे पहले ये भाई एक रिंग है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ये रही भाई हमारे पास एंथ्रासीन, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, ये रहा एंथ्रासीन। और अगर यहाँ पे दो कीटो ग्रुप हो तो इसको बोलेंगे भी हमारे पास क्या, एंथ्राक्विनोन। अब इसको हम बॉन्ड से एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो गया भाई आपका एंथ्राक्विनोन। और इसके ऊपर क्या भाई यहाँ पे ग्रुप है इथाइल, इथाइल मतलब C2H5, तो बोलेंगे 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। अब 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन को हमने करना है रिडक्शन। रिडक्शन इज बाय यूजिंग हाइड्रोजन ओवर प्लेडियम कैटलिस्ट, मतलब ऑक्लूडेड मेटल हमने यूज किया यहाँ पे। ऑक्लूडेड मींस
जब हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगी कहाँ पे, प्लेटिनम के ऊपर, पहले पढ़ा था हमने हाइड्रोजन में, दिस इज ऑक्लूजन। सो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे भाई, हमें मिलेगा, देखो भाई प्रोडक्शन होगी, तो मतलब जो आपके कीटो ग्रुप हैं, कीटोन्स, दे विल रिड्यूस टू व्हाट वी कैन से एल्कोहल्स। ये पहले बनेगा क्या भाई, एल्कोहल्स, बाकी वाली रिंग में सेम, ये हो गए भी हमारे पास एल्कोहल्स। सो फर्स्ट वी गेट एल्कोहल्स। अब अगर आप एल्कोहल को फिर से ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, व्हेन यू ऑक्सीडाइज अगेन एल्कोहल, यहाँ पे C2H5, व्हेन यू ऑक्सीडाइज अगेन एल्कोहल्स, व्हाट you get back anthraquinone and H2O2, which is called hydrogen peroxide. So this is the case that you have to remember कि भाई एक तो हमारे पास देखो यहाँ पे अगर सिंपल आप बताओ तो आप एंथ्राक्विनोन को भी यूज कर सकते हो, यू कैन आल्सो यूज दिस वन, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये क्या भी हमारे पास एंथ्राक्विनोल, तो आप एंथ्राक्विनोल को यूज करो सीधा, उसका क्या करो ऑक्सीडेशन करो। अगर आपने ऊपर से स्टार्ट करना तो आप ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो कि हमें ये मिलता है, तो अगर आपको जरूरी है कि आप यहीं से कर दो स्टार्ट, ठीक है, व्हाट यू गेट hydrogen peroxide. This is also one of the important method. So these are the three methods by which we prepare H2O2, ठीक है। तो ये इसका नाम है भाई 2-ethyl anthraquinone, इसका नाम है 2-ethyl anthraquinone. On is used for ketone and ol is used for alcohol. So basically you can start by oxidation of anthraquinol, or by reduction of first anthraquinone to anthraquinol and then followed by oxidation to give H2O2. So basically आप यहाँ से start कर सकते हो, but आपने फिर heading change करनी पड़ेगी, ऊपर आप लिखोगे क्या भाई, by oxidation of anthraquinol. So with this way we prepare what we can say H2O2. So this is the 3 methods. If you want to take screenshot, take that. अगर ठीक है तो इसको टेक करो, क्योंकि आई एम गोइंग टू नाउ सेकंड पेज। सो ये भी प्रेपरेशन किसकी, H2O की। हमने 3 ही मेथड यहाँ पे डिस्कस करने हैं, नो नीड टू डिस्कस। यस बताइए सर, दिस इज नॉट क्लियर, कैन यू सेंड द पिक्चर्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप? ओके ओके, बट आपको तो दिख रहा है ना, से थोड़ा अगर दिख रहा है ना, मतलब पढ़ाते कि वो नहीं दिख रहा। यस सर, दैट इज विजिबल, बट प्लीज सेंड द पिक्चर्स इन द ग्रुप। चलो कोई स्क्रीनशॉट अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो चलो इसको मैं बाद में सेंड करूंगा। अच्छा भाई नेक्स्ट हमारे पास है भाई, इसके बाद हमने इसको प्रिपेयर किया। अब जब प्रिपेयर किया तो भाई हमें होता क्या कि यहाँ पे जो प्रिपेयर करते हैं ना, तो जो हमारे पास H2O2, भाई याद रखना ये चीज कि H2O2 में आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर जरूर होता है वहां पे, मतलब इट इज नॉट 100% H2O2। कभी आपको 30% मिलेगा, कभी आपको 1% मिलेगा, कभी आपको 40% मिलेगा, कभी आपको 10% मिलेगा। 50% से ऊपर मिलना बहुत इंपॉसिबल होता है। सो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम या तो उसको हम किसी और से ट्रीट करते हैं एजेंट से, जहां पे हम वाटर को निकाल सकते हैं। सो प्योर H2O2 को बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। रिमेंबर, अ प्योर सैंपल ऑफ H2O2 cannot be prepared easily। अगर उसको बनाना है तो आपको वैक्यूम डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर दैट, यू हैव टू अंडरगो, मतलब यू हैव टू अंडरगो दैट H2O2 अंडर वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई, या आपको किसी और केमिकल्स के साथ रिट्रीट करना पड़ेगा। तो मतलब ये इसका लिमिटेशन है कि आपको प्योर H2O2 नहीं मिलेगा। अब H2O2 का मैं जो मैन्युफैक्चर किया, जो मैंने बनाया, तो भाई इसके बाद इसकी, अब H2O2 की मैन्युफैक्चर के बाद हम ये बात करते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ठीक है। तो 2 तरीके बताए हुए मैंने आपको। अब अगर H2O2 की बात करें, सबसे पहले भी स्ट्रक्चर से पहले हम ये बताएं कि भाई स्ट्रक्चर इसके H2O2 एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में। एक फॉर्म लिक्विड एंड गैस फॉर्म, और दूसरा फॉर्म सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लिक्विड में डिफरेंट है और हमारे पास सॉलिड में डिफरेंट है। पहले से बता दूं तो देखो भाई ऐसे दिखा सकते हैं, ये भाई H ऑक्सीजन अटैच और H अटैच,
ठीक है, पहले ये बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या भाई, यहाँ पे जब भी हमारे पास कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड होती है भाई, याद रखना, इसको बोलते हैं परऑक्सो बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं परऑक्सो बॉन्ड। और परऑक्सो बॉन्ड में क्या होता है कि ईच ऑक्सीजन इज -1। ठीक है, परऑक्सो बॉन्ड में क्या होता है, ईच ऑक्सीजन -1। ये अपने पढ़ा अपने स्टेट ऑफ किसमें, रिडॉक्सिएशन पढ़ा है कि परऑक्सो बॉन्ड की स्टेट क्या होती है, -1। तो परऑक्सो बॉन्ड आपकी ये होती है। और ये परऑक्सो बॉन्ड हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड पहले भी पढ़ी है। तो ये भी यहाँ पे परऑक्सो में क्या है कि -1 स्टेट होती है। ये परऑक्सो बॉन्ड के ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। वैसे तो आप देखो वाटर के साथ में क्या है, तो वाटर इज HOH। ठीक है, एंड व्हेन वी ऐड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हियर, this oxygen makes it peroxo bond, so it is one extra oxygen than compared to the similar compound। अब हम बात करें तो भाई बिल्कुल कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। तो भाई स्ट्रक्चर क्या इसका, इसका स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। रिमेंबर, H2O2 का स्ट्रक्चर है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसे बनेगी बुक, देखो ये हमारे पास इस तरह से हो गया लिंक। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बना दूं, लेट्स सी, तो भाई देखो इसको मैं थोड़ा इस तरह बना दिया। ये मतलब मान लो जहां से बुक फोल्ड होती है इस तरह से, इतना सी इसका ये कोड है। उसके बाद इसको ज्वाइन करते हैं, सो इट इज लाइक दिस। नाउ इट इज लुकिंग लाइक बुक वन हाफ। और ये भाई बुक का सेकंड हाफ। ये बुक का फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ। क्या यहाँ पे एंगल्स बनते हैं भाई, एंगल्स के बनते हैं, देखो यहाँ पे। अब बेसिकली मतलब जो यहाँ पे एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू अप्रॉक्स, अगर वो लिक्विड गैस स्टेट में तो 115 111.5 है यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में एंगल है ये वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू 94.8 डिग्री एंगल। सो दिस इज द एंगल हियर। सो इन केस ऑफ लिक्विड गैस दिस एंगल इज हियर। अब अगर मैं बात करूं H2O2 की, तो मैंने कहा था ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो भाई यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इस तरह ही होगा, बट एंगल्स डिफरेंट होंगे। ये मान लो हमारे पास ये भी स्ट्रक्चर है किसका, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दिस इज आल्सो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो आप इसको भी बना सकते हो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, बट एंगल आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हो गया हमारे पास बुक का पोर्शन, इस तरह से बना दिया मैंने इसको। नाउ यू गॉट, ये कैसे होगा हमारे पास, इस तरह से होगा। ठीक है, तो एंगल्स क्योंकि यहाँ पे भी द एंगल्स, इन केस दिस एंगल is equal to 92.5 degree, and this angle is now greater, that is OHO bond angle, and that is equal to approx 104 or approx 105 कर देता हूँ सीधा, 105 degree. This is angle. So this is structure. So remember the structure of the H2O2 is open book like structure. ठीक है, book like structure, and it consists of peroxo bond. One more thing, in solid the HOH angles are equal to 111.5, but we can say peroxo angle is here 94, and this is maximum. So this is the structure of the H2O2. अब हम बात करते हैं इसकी भाई प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो भाई पहले प्रॉपर्टी से मैं पहले बात करता हूँ कि भाई इसका यूज क्या है। तो इसका यूज क्या क्या है, नंबर वन से मैंने पहले कहा ब्लीचिंग के काम में, सुना होगा आपने, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। नंबर टू, ठीक है, नंबर टू भाई ये यूज होता है कहां पे, डिसइंफेक्टेंट। समटाइम्स यू यूज इट आल्सो, ठीक है, आप इसको यूज भी करते हो डिसइंफेक्टेंट के लिए। देन थर्ड, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पावर। मतलब सोर्स ऑफ पावर ये नहीं कि कोई पावर, बट मतलब मान लो कि इसमें जैसे 90% जो H2O2 है ना, वो यूज होता कहाँ पे, फ्यूल किसमें भाई, रॉकेट्स में, हेलीकॉप्टर में, सबमरीन्स में, वहां पे यूज होता है।
नंबर 4 किसी ओल्ड एंटी क्यू को, मतलब कोई ओल्ड, अगर मान लो कोई मेटल है, उसको अगर आपने रिस्टोर करना है, ठीक है, घर में कुछ अगर आपको रिस्टोर करना है ओल्ड आपके दादा परदादों का, तो उसको भी यूज होता है ये। तो मतलब रिस्टोरेशन के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है मेटल की, ठीक है, जो जलती नहीं है, तो उसको आप रिस्टोरेशन कर सकते हो। तो रिस्टोर कर सकते हो आप जैसे ओल्ड थिंग्स को, ठीक है, पेंटिंग हो गई, कुछ भी हो गई, तो ये भी हमारे पास है यहाँ पे। तो इनको आप चीजों को यूज करते हो, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को आप, मतलब कि H2O2 को, इसके यूज हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद भी आपको मैं बता दूं, एक इसका यूज इसमें भी है कि जैसे आपके पास पैराफिन बनते हैं, पैराफिन बनते हैं, उनमें भी यूज होता है ये पैराफिन का कलर, या फिर टेफ्लॉन बॉटल जो बनती है उनमें भी ये यूज होता है, मतलब दे आर आल्सो यूज देयर। सो ये कुछ इनके यूजेस हैं भाई हमारे पास, ठीक है। और एक मेडिसिन भी होती है भाई इसकी, ठीक है, H2O2 की मेडिसिन भी होती है, मेडिसिन यूज भी होता है इसका। एंड यू नो दैट आल्सो कि इसका एक मेडिसिन यूज भी होता है, ठीक है भाई। तो जो मेडिसिनल यूज हमारे पास है वो क्या भी हमारे पास, कि अगर हम जैसे मान लो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, व्हाट वी कैन से, अगर कोई इन्फेक्शन है मान लो, ठीक है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास हमें कुछ मेडिसिन हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ स्फेलोस्पोरिन, आपने सुनी होगी, पता नहीं सुनी होगी नहीं सुनी होगी, एक मेडिसिन है उसका नाम है स्फेलोस्पोरिन, ठीक है। तो स्फेलोस्पोरिन के प्रेपरेशन के काम में भी आता है क्या भाई हमारे पास H2O2, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना कि स्फेलोस्पोरिन के काम में भी आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए कि इसमें क्या क्या यूज होता है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इवन पोल्यूशन कंट्रोल के काम भी आता है ये, पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉइस्चर वहां से निकाल देता है, तो पोल्यूशन कंट्रोल भी कर देता है यहाँ पे ये। तो ये भी इसका यूज हमारे पास है। फिर मैंने कहा ये एंटीसेप्टिक का यूज भी करता है। अब एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज करता है भैया, आपको सुपर बताया मैंने कि डिसइंफेक्शन है तो एंटीसेप्टिक भी होता है। अब एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज होता है भाई, देखो जैसे हमारे पास कुछ वुंड्स को वॉश करते हैं हम, ठीक है, एक, या कभी कभी हम टीथ को भी मतलब कि वहां पे यूज करते हैं, गम्स ब्लीडिंग हो वहां पे यूज कर सकते हैं उसको, यहाँ पे सोल्यूशन, या फिर कानों को भी करते हैं। तो भाई ये कुछ इनके, एक ईयर्स हो गया, एक माउथ हो गया, मतलब टीथ हो गया आपके पास, इस तरह से ये यूज होता है भाई। यहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन भी यूज होता है, बट कितना यूज करना है वो डिपेंड करता है कितना कंसंट्रेटेड हमारे पास होना चाहिए, कितना डाइल्यूट होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ दी H2SO4। तो सॉरी नॉट H2SO4, H2O2। नेक्स्ट नेक्स्ट भी हमारे पास, अब इसके यूज के बाद इसकी भाई क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज थोड़ी इसकी टिपिकल हैं। तो प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से देखेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज की हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट उसके साथ साथ में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। तो कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ प्रॉपर्टी ये शो करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी है हमारे पास। तो मतलब इधर तो यहाँ पे भी शो कर रहा है। उसके बाद इसका एक और कैरेक्टर भी हमारे पास है भाई, वो कैरेक्टर ये है कि एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा क्या है, मतलब ब्रॉड है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी एक एक पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे एक्ट करता है, रिड्यूसिंग कब करेगा, एसिडिक मीडियम में क्या करता है, बेसिक में क्या करता है, न्यूट्रल में क्या करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये प्रॉपर्टी जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर कंपटीशन बट फॉर योर सिलेबस। तो भाई ये बता दूं आपको मैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट व्हाट विल डिस्कस प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो आपका H2O2 है ना, अगर H2O2 मुझे बताओ भाई अगर डिकम्पोज करे तो क्या देगा, अगर इसको डिकम्पोज करें क्या देता भाई, ये देता है वाटर प्लस प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस करना चाहे इसको ट्वाइस यहाँ पे
ट्वाइस यहाँ पे बैलेंस। तो दिस इज द बेसिकली कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो भाई ये तो सिंपल है, बट टफ भी है, मैंने कहा ना नीचे भी टफ वर्क करेंगे। तो ये भी सिंपल डिकम्पोजिशन। सो व्हेन H2O2 ब्रेक, ठीक है, इट गिव्स अस व्हाट वी कैन से वाटर अलोंग विद ऑक्सीजन, and this is decomposition by thermal decomposition. And the reaction is what? The reaction is exothermic. That means we have a delta heat of formation is always equal to negative part. So this is basically exothermic reaction. ठीक है भैया, हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है हमारे पास। नंबर 2, so this is decomposition. नंबर 2, हमने कहा भाई ये एसिडिक मीडियम की तरह भी रिएक्ट करता, तो मतलब ये इसका एसिडिक नेचर भी होगा। यस बताइए सर। स्क्रीन इज ब्लर। आप देखो, if it is visible, the visible I will write bigger. तो भाई चलो मैं बिगर लिखता हूँ थोड़ा सा। अब है एसिडिक करेक्टर। तो भाई एसिडिक करेक्टर क्या होगा इसका? इसका एसिडिक नेचर क्या होगा? मान लो ये हमारे पास आपका H2O2 है, ठीक है, इसको हम अगर एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, क्या देता है भाई यहाँ पे? ये देता है H पॉजिटिव वाइन प्लस HO2 नेगेटिव वाइन। मतलब इसने क्या दिया? इसने दिया H पॉजिटिव वाइन। और कोई H पॉजिटिव वाइन दे रहा है, वो क्या है? एसिड हमारे पास है, ठीक है भाई। तो इसको क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? H2 नेगेटिव वाइन। इसको बोलेंगे हाइड्रो, ठीक है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन भी मिलता है हमारे पास। बट हमें बात किसकी है? हमें बात है खाली वी हैव H पॉजिटिव। तो भाई इसके पास देखो, इस हाइड्रो पेरोक्साइड के पास भी क्या है? अगर हाइड्रो पेरोक्साइड की बात करें, ये फर्दर क्या देगा? ये फर्दर H पॉजिटिव दे सकता है, प्लस क्या निकालेगा? प्लस निकालेगा O2 2 नेगेटिव। एंड व्हाट इज O2 2 नेगेटिव? इट इज योर हियर पेरोक्साइड आयन। तो भाई इसने कितने दिए? 2 प्रोटॉन दिए। तो आप ऐसे दिखा सकते थे, यू कैन आल्सो शो दिस, दोनों को कंबाइन करके आप दिखा सकते हैं कि H2O2 अगर हम डिसोसिएट करें तो ये 2 टाइम्स प्रोटॉन देगा और सीधा देगा पेरोक्साइड आयन। अब ठीक है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं भाई। तो मतलब ये आपका एसिडिक है, इट यूजेस प्रोटॉन। तो दिस शोज दिस इज अ एसिडिक इन नेचर, ठीक है भाई। अगर एसिडिक है तो क्या ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो भाई अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो दिखा दो भाई। ये रहा हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये रहा हमारे पास H2O2। इसको बनाया मैंने बेस, ये बताया मैंने एसिड। तो बताओ भाई रिएक्शन क्या होगी? व्हाट वी गेट? तो ये सबसे पहले एसिड प्रोटॉन देता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कैसे भाई यहाँ पे रिएक्शन होगी हमारे पास? अगर एसिड ने प्रोटॉन दिया, बेस ने OH आयन दिया, इसका प्रोटॉन इसका OH, तो पहले तो वाटर निकलेगा। जब इसका प्रोटॉन यहां से निकला, एक प्रोटॉन निकला, तो पीछे क्या बचा भाई? पीछे बचा HO2 नेगेटिव। और इसका सोडियम यहां से निकला तो क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे यहाँ का सोडियम पॉजिटिव चार्ज, उसका HO2 नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कंपाउंड बनेगा। दैट कंपाउंड इज योर NaHO2। एंड NaHO2 को बोलेंगे भी क्या? सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इट इज सोडियम नॉट हाइड्रोजन बट इट इज हाइड्रो पेरोक्साइड। अब ये समझ आया भाई कि ऊपर का यूज क्या किया था हमने? तो एक प्रोटॉन निकाला, एक प्रोटॉन निकाला। अगर भाई सुनो, अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सेस में, मतलब अगर बेस मैंने ज्यादा यूज की, अगर बेस को मैंने ज्यादा यूज किया तो फिर दोनों प्रोटॉन निकालेगा। जब दोनों प्रोटॉन निकालेगा तो हमारे पास यहाँ पे बनता है पेरोक्साइड आयन। अब क्या बनेगा भी यहाँ पे? सो वी गेट Na2O2, ये बना पेरोक्साइड, ठीक है, प्लस प्लस भाई वाटर तो निकलना है, वाटर निकला, ठीक है, बैलेंस खुद कर देना यहाँ पे। सो वी गेट दिस सोडियम पेरोक्साइड। सो रिमेंबर दिस शोज दिस इज योर एसिडिक बिहेवियर। तो भाई ये एसिडिक बिहेवियर हमारे पास है। दोनों आयन बताए मैंने। हाँ जी बताइए। सर हम यहाँ पे पर ऑक्साइड क्यों लिख रहे हैं? विच वन सर जहाँ पे आपने ऊपर लिखा हुआ सोडियम हाइड्रो पर ऑक्साइड। देखो हाइड्रो पेरोक्साइड यहाँ पे देखो ना, अगर आप इसको देखो तो ये क्या है?
ये हमारे पास है, जब ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे ना O दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर मैं लिखता खाली O2, ये तो सिंपल आपका ऑक्साइड होता ना, ये ऑक्साइड है Yes, sir. O2 नेगेटिव, बट ये दो ऑक्सीजन है तो पर ऑक्साइड हो गया ना। अब देखो इसको ऐसे देखो तो ये वही है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वाला, दो नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये इस तरह से ना, इज इट पेरोक्साइड? यस है। और इसमें क्या भाई Okay, यहाँ sir. पे, इसमें देखो क्या हाइड्रो में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव और ये 1 पॉजिटिव। तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल चार्ज को कभी HO2 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे ना हाइड्रो, तो हाइड्रो बन जाता है, हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। तो भाई इस तरह से हमारे Okay, पास ये sir. दो हो गए। दिस इज बेसिक करेक्टर। अब ये बेसिक करेक्टर हमारी पास, सॉरी एसिडिक करेक्टर है। अब थर्ड क्या कहा था मैंने, थर्ड कहा था मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई यहाँ पे ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करता भी ये बताया, और ये एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट भी करता है। तो पहले ये बताते हैं कि ऑक्सीडाइजेंट कैसे एक्ट करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे याद किया आपने, तो भाई ये याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ये करता है रिडक्शन इसकी, खुद की, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिडक्शन होती है भाई, तो अगर रिडक्शन होती है तो मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई H2O2 की रिडक्शन होती है तो ये करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन इज आल्सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट वी गेट रिडक्शन होती है H2O की टू की किसमें, वाटर में। देखो भाई कैसे होती है रिडक्शन, ये बता दो आपको मैं। रिडक्शन हो गई वाटर में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। सो व्हाई वी पुट हाइड्रोजन हियर इन ऑर्डर टू बैलेंस। इसको बैलेंस करना चाहें तो भाई यहाँ पे लिखते तो मैं कितना भाई ट्वाइस टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया भाई दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन बैलेंस, हमारे पास हाइड्रोजन को 4 टाइम्स, तो यहाँ पे भाई ट्वाइस टाइम्स। और अब देखो भाई यहाँ पे अगर ये 2, इसके मुझे अगर चार्ज को बैलेंस करना, यहाँ पे कितने भाई, अगर यहाँ पे देखो एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी क्या करो, दो टाइम्स कर दो। तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए, दो प्रोटॉन की प्रेजेंस में ये बना आपका H2O2। दिस इज द वे ऑफ रिडक्शन। जब ये होगा आपका एसिडिक मीडियम में, ये होगा आपका किसमें, एसिडिक मीडियम में। और अगर बेसिक मीडियम में रिडक्शन करना चाहें तो फिर क्या होना चाहिए भाई, देखो भाई अब हमारे पास H2O2 ने अगेन इलेक्ट्रॉन को ऐड किया इन बेसिक मीडियम। तो भाई यहाँ पे भी क्या बनेगा, बेसिक मीडियम में बेसिकली जब प्रोटॉन सप्लाई करते हैं वाटर बनता है, बेसिक मीडियम में ये बनता है कन्वर्ट होके हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। अब हाइड्रोक्सिल आयन को बैलेंस करते हैं भाई यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे दो और एक तीन प्रोटॉन पूरे, तीन हाइड्रोजन पूरे, मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे टोटल 3 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मुझे 3 नेगेटिव चार्ज बनाना, तो कैसे बनाना है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, टोटल 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज। सो वी गेट, अगर बेसिक मीडियम क्या तो क्या बनेगा भाई, OH नेगेटिव आयन बनेगा। अगर एसिडिक मीडियम क्या बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो ये होगी इसकी रिडक्शन बेसिकली। सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई अब ये एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बताया कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से ये रिएक्शन में काम करेगा। नाउ वो प्रोसीड विद नंबर ऑफ द रिएक्शंस। तो मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, सिंपल मैं वहां पे बताऊंगा आपको आयनिकेशन टोटल वाली, बैलेंस वाली बताऊंगा। तो भाई देखो आप कैसे करता है यहाँ पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हमारे पास बात करें कि किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। तो भाई सबसे पहले ये कन्वर्ट करता है फेरस आयन को, यहां से सुना, फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करता भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, देखो भाई मैं पूरा रेडॉक्स का यूज करूंगा, ये करता है फेरस आयन को कन्वर्ट फेरिक आयन में। ये भाई अगर मैं मीडियम एसिडिक यूज कर रहा हूं तो भाई सबसे पहले हमारे पास फेरस आयन थे, ये रहे। when they react with H2O2 in presence of acid, medium acidic यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई। what they gives us ferric ion, Fe3 पॉजिटिव आयन। अच्छा भाई मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में H2O2 किसमें कन्वर्ट करता है, वाटर में, ठीक है भाई। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, तो यहाँ पे ट्वाइस। अब यहाँ पे आयरन आयरन है, 2 2 4, 4 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे कितना भाई, एक 5 पॉजिटिव चार्ज, इसको भी ट्वाइस कर देता हूँ। 4 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज, 2 3 6 6 पॉजिटिव चार्ज, रिएक्शन बैलेंस। तो दिस वे हमने इसको
किसमें मीडियम में किया, ये हमने किया इसको एसिडिक मीडियम में, और ये शो किया कि ये क्या कर रहा है काम, यहाँ पे ऑक्सीडाइज एजेंट कर रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एक रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो दिस इज द वन रिएक्शन, ठीक है, मैं जनरल बता रहा हूँ यहाँ पे सिंपल। ये हो गया भी एक रिएक्शन हमारे पास, क्लियर। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको, दूसरा भाई ये आई नेगेटिव को कन्वर्ट करता है I2 में। देखो भाई यहाँ पे आई नेगेटिव के पास 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसके ऊपर 0, तो मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या करें, डिक्रीज कराएगा। अगेन इसका ऑक्सीडेशन कोई कैसे होगी भाई, देखो ये भी शो करते हैं एसिडिक मीडियम में। देखो भाई हमने क्या लिया, आई नेगेटिव लिया, उसके साथ में क्या ट्रीट किया, H2O2 किया, और क्या लिया भाई यहाँ पे एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव आयन। तो बताओ भाई क्या दे रहा है, सबसे पहले आई किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में। अच्छा भाई बाकी क्या बनेगा, बाकी बनेगा वाटर हमारे पास, कर दो बैलेंस हमारे पास बस। अच्छा भाई यहाँ पे 2 आयोडीन, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, इसको भी 2 पॉजिटिव कर दो, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 0 चार्ज, और यहाँ पे भी 0 चार्ज। अगर आपका बैलेंस करना है यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसको 2 कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस होगा। दिस इज अनदर रिएक्शन, सेकंड वन। बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बट इजी नहीं है, टिपिकल है। ओके, 2। तो इस तरह से आपने डिफरेंट केसेस को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये वो केसेस थे जहां पे आपने यूज किया एसिडिक मीडियम का। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से बेसिक मीडियम में करते हैं। अब बेसिक मीडियम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल बताता हूँ यहाँ पे। इफ यू हैव टेकन बेसिक मीडियम, रिमेंबर द रिएक्शंस आर नॉट सिंपल एज द एसिडिक वन, ओके। एंड फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग वन एग्जांपल, जिसे मैंने बताया कि Mn+2 से हमने उसका ऑक्सीडाइज करना है Mn+4 में, ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक मीडियम। तो भाई 2 से क्या हो रहा है 4 में, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडाइज किस हो रहा है भाई, H2O2 से। तो मैंने लिखा भाई कि हमारे पास सपोज Mn2 पॉजिटिव आयन थे, दे रिएक्ट विद H2O2, मीडियम कौन सा भाई, अब बेसिक मतलब OH नेगेटिव आयन। अच्छा भाई क्या देगा, तो भाई क्या देगा यहाँ पे, तो भाई हमें मिल रहा है Mn+4। मैं बता दूं यहाँ पे हमें मिल रहा है कंपाउंड MnO2, जिसमें Mn क्या है +4 में है। अच्छा भाई क्या कहा था कि OH नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन ही देते हैं, बट अभी इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। नाउ सी, Mn यहाँ पे, Mn यहाँ पे, H कितने भाई यहाँ पे, तो देखो भाई H हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। और अगर आप सही से देखो तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव भी है, इस 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे मुझे 2 नेगेटिव करना पड़ेगा, 0 चार्ज बनाना पड़ेगा। अच्छा भाई हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, और इसको भी मुझे 2 टाइम्स, मतलब ये बनेगा आपका टोटल वाटर बनेगा यहाँ पे, ये वाटर बनेगा। मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे, इट इज इक्वल टू, क्योंकि आइन तो होगा नहीं यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे 2H आइंस हमारे पास हैं, तो फिर आइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये 2 टाइम्स वाटर हो गया भाई। So we get this, and this way we balance the reaction basic medium. तो ये था भाई बेसिक मीडियम में हमारे पास, कि किस तरह से हमने इसको शो किया और कैसे हमने रिएक्शन को प्रोसीड किया, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा आपको भाई, देखो इफ सेकंड रिएक्शन, इफ वी कन्वर्ट chromium+3 to chromium, what we can say, ऐसे कन्वर्ट करते हैं इसको, chromium+3 से कन्वर्ट करते हैं CrO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो भाई इसमें कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे chromium+3 हो भाई, यहाँ पे बताओ chromium कितना है, what is state of chromium here, you can put by x plus 4 minus 2 is equal to -2, so x minus 6 is equal to -2, so x is equal to +4, so this is basically +4। तो आपने chromium+3 को कन्वर्ट करना +4 में by using H2O2, तो आपने क्या किया भाई, यहाँ पे Cr+3 लिखा प्लस H2O2 लिखा प्लस क्या किया भाई यहाँ पे, मीडियम इज, तो मीडियम इज बेसिक, सो बेसिक यू कैन नॉट यूज बोथ साइड OH, दिस इज वेरी कॉमन टेक्निक। तो भाई आप बताओ क्या होगा भाई, सबसे पहले कन्वर्ट करेगा और ये बनेगा CrO4 2 नेगेटिव, प्लस निकालो वाटर, बस करो रिएक्शन बंद। अब इसको बैलेंस करो भाई, तो भाई बैलेंस करने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, देखो भाई सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड, सो यू हैव टू बैलेंस दिस। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो चलो इसको बैलेंस करके बता देता हूँ मैं। ये ट्वाइस किया, ये ट्वाइस फोटोसाइड,
ठीक है 8 और फोटोज 8, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 6 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देन दिस बिकम 10 टाइम्स, इसको 10 का देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और ये 3 का देता हूँ मैं 1 मिनट, ये 3 का देता हूँ उसको यहाँ पे 6 तो 16 ठीक है, अब ठीक है भाई, तो अब बैलेंस भाई हमारे पास ये बैलेंस हो जाता है। इस तरह से भी हम इसको डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे अगर आप रिडॉक्स को यूज करके सीखते हो, अभी तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो रिडॉक्स करके कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज द बेसिकली ये जो सारा बिहेवियर था ये क्या था, ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आपको समझ आया भाई ऑक्सीजन एजेंट में खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब हमारे पास इसका रिड्यूसिंग एक्शन, तो भाई रिड्यूसिंग एक्शन क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। I hope you remember all these reactions because they are very important. Now we discuss what